sources. सिंपल सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है which is emitting monochromatic light. Monochromatic light emit कर रहा है and light emitted by this source, it passes through two slits. तो ओरिजिनल सोर्स तो ये ऐसी है, अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं बना रहा मैं इसको. अकॉर्डिंग टू स्केल मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस इज कैपिटल डी, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल डी. नॉट ड्राइंग अकॉर्डिंग टू स्केल का मतलब ये है कि कैपिटल डी इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू स्मॉल डी. डायग्राम में वो नहीं दिख रहा, तो ऑन स्केल नहीं बनाया हमने इसको. ओरिजिनल लाइट एस से आ रही है, एक S1 तक गई, S2 तक गई, एंड वी आर एज्यूमिंग दैट सोर्स इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली. मतलब ये डिस्टेंस भी d/2, ये भी d/2. उसके बाद हमने अगर स्क्रीन पे देखना है कि मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, तो एक लाइट S1 से P तक आई, एक S2 से P तक आई. अगर मैं पूछूं पाथ डिफरेंस कितना है, तो इट विल बी S2P minus S1P. Yes. ये कोई रे नहीं है, ये सिर्फ डेरिवेशन करने के लिए मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं. रे यही है हमारे पास जो बनाई है, इधर से इधर ये डिस्टेंस d/2, और ये डिस्टेंस y. तो हमने बताना है सेंटर ऑफ स्क्रीन से y डिस्टेंस पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, और उसकी कंडीशंस क्या होंगी. तो S2P माइनस S1P की वैल्यू निकालनी है बेसिकली. अगर S2P माइनस S1P की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 आएगी तो Minimum. इवन मल्टीपल ऑफ 2 λ/2 आएगी तो मैक्सिमा. तो इंटरफेरेंस की कंडीशंस वही रहनी है, सिर्फ मैथमेटिकली S2P माइनस S1P की वैल्यू निकालनी है. सो डायग्राम ड्रॉ कर दो, फिर लिखते हैं इसको. मैथमेटिकल डेरिवेशन है, नथिंग फिजिकल कंसेप्ट नहीं है. कंसेप्ट तो वही इंटरफेरेंस का ही रहेगा. सर हेडिंग क्या था? क्या चीज? सर हेडिंग क्या? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये नॉर्मली एग्जाम में आएगा ना, तो इतना भी नहीं लिखा होगा, वो हमेशा YDS लिख देते हैं. बिकॉज बुक्स में भी न्यूमेरिकल देखोगे तो पूरा नहीं लिखते, वो इसको YDS लिख देते हैं, यंग्स डबल स्लिट. सपोर्ट थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा ब्लर है. ब्रॉडकास्ट किया हुआ मैंने, देख लो अगर चाहिए तो. आईडी बता देता हूँ मैं क्या है. सेवन 792-504. So you can write Young's double slit experiment is experimental method. Young's double slit experiment is experimental method
to generate two coherent sources as shown in the figure. As shown in the figure, monochromatic light. As shown in the figure, monochromatic light. Monochromatic light from source S. Monochromatic light from source S passes through two slits in a block. Passes through two slits in a block. And these two slits starts acting as. And these slits starts acting as two independent sources of light. These two slits starts acting as two independent sources of light. Two slits starts acting as two independent sources of light S1 and S2. ब्रैकेट में लिख लो as the source of light from both slits is same. As the source of light for both slits is same, therefore source of light for both slits is same, therefore the phase difference between the light coming from S1 and S2 is constant. Next paragraph में लिखो as shown in the Sir, figure the phase difference. between the light coming from two sources S1 and S2 is constant. Light coming from two sources S1 and S2 is constant. As shown in the figure. As shown in the figure, small d is. As shown in the figure, small d is the distance between two slits S1 and S2 and a screen is placed at a distance capital D as shown in figure such that this D is very much greater than small d. Such that D is very much greater than small d. लास्ट लाइन रिपीट करना. Screen is placed at a distance capital D as shown such that D is very much greater than small d. For any point P on the screen, at a distance y from the center, for any point P on the screen at a distance y from the center, path difference between the two rays, path difference between the two waves reaching point P is S2P minus S1P. यहाँ तक सब क्लियर है जो लिखा है? Sir, path difference between the two waves reaching point P is S2P minus S1P. मेरे को इसकी वैल्यू बताओ डायग्राम से देख के S2P स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू D स्क्वायर ठीक है वैल्यू डायग्राम से देख लो एक बारी S1P स्क्वायर किसका इक्वल होगा S1P स्क्वायर D स्क्वायर प्लस y माइनस D by 2 का होल स्क्वायर
ये मैथ्स कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को S2P माइनस S1P की वैल्यू निकालनी है. तो वी कैन से दैट S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर राइट हैंड साइड सॉल्व करके बताओ क्या आएगी. इसको तो मैंने लिख दिया S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P. इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यू विल सी मेजॉरिटी ऑफ द टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी. So what you get is S2P minus S1P इसको मैं D के इक्वल ले सकता हूँ. स्मॉल d इज लेस. अगर आप ध्यान से देखो मैं मैथमेटिकली एक मिस्टेक कर रहा हूँ तो जो यंग्स ने की वही कर रहा हूँ. अपनी तरफ से नहीं कर रहा मैं कुछ. मतलब मैं इधर तो S2P और S1P दोनों को कैपिटल D पुट कर रहा हूँ, इधर नहीं कर रहा. बट अदरवाइज और मेथड में इसको करने से जिससे सेम रिजल्ट आ जाएगा. बट CBSE नॉर्मली फॉलोज दिस मेथड. So S2P path difference is by D by D. अब बात करें मैक्सिमा मिनिमा की. फॉर मैक्सिमा path difference is 2n lambda by 2 मतलब yn d by d this is distance of nth maxima from center of screen. Similarly for minima path difference is odd multiple of lambda by 2 in starting from 1. अगर मैं इस फॉर्मूला से मैक्सिमा की पोजीशंस पूछता आपसे कि मैक्सिमा किस किस डिस्टेंस पे बनेगा. n को 1 पुट करेंगे तो d lambda by d, फिर 2d lambda by d, 3d lambda by d and so on. मिनिमा की पोजीशंस क्या होंगी? n is equal to 1 से शुरू करें तो n 1 है तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी?
This is distance of nth minima from center of screen. कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं दो मैक्सिमास में डिस्टेंस कितना है? दो मैक्सिमास में फर्स्ट मैक्सिमा d lambda by d पे, फर्स्ट मैक्सिमा d lambda by d पे, सेकंड 2d lambda by d पे, तो फर्स्ट और सेकंड में डिस्टेंस कितना हो गया? D lambda. lambda by d. d lambda by d. फर्स्ट और सेकंड मिनिमम में डिस्टेंस कितना है? d lambda by 2. D lambda by 2. d lambda by d. d आप ऐसे कर दो ना, आप d lambda by d को x मान लो, तो x 2x 3x, और ये क्या बन रहा है? x by 2 3 by 2x 5 by 2x, तो 5 by 2x minus 3 by 2x will be x, 3 by 2x minus x by 2 that will also be x. तो जो दो मैक्सिमास में डिस्टेंस है वही दो मिनिमास में है. इसको अगर मैं नॉर्मली हम इसको फिजिक्स में बीटा बोलते हैं, अभी उसको प्रूफ भी कर देंगे. ये बीटा 2 बीटा 3 बीटा एंड सो ऑन. Whereas यहाँ पे हमारे पास बन रहा है बीटा बाई 2 3 बीटा बाई 2 5 बीटा बाई 2 एंड सो ऑन. सेंटर ऑफ स्क्रीन पे क्या बनेगा? मैक्सिमा या मिनिमा? Maximum. मैक्सिमा. तो मैक्सिमा पे अगर दोनों का एम्पलीट्यूड दोनों स्लिट्स में से a है, तो मैक्सिमा पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड a है तो मैक्सिमा पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 4a square के ऊपर 4a स्क्वायर. और मिनिमा पे 0. अब मैंने उसके आगे कुछ लिखा क्यों नहीं था? इस डायग्राम के आगे आप एक और डायग्राम बनाते हो जो कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लेते हैं. इस एक्सिस पे इंटेंसिटी, आप कह रहे हो यहां बनेगा मैक्सिमम. अब फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस कम है या फर्स्ट मैक्सिमा का डिस्टेंस कम है? फर्स्ट मिनिमा कितने डिस्टेंस पे बना था? D lambda. बीटा बाई 2 पे. और फर्स्ट मैक्सिमा बीटा पे. तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस को ऐसे मार्क करूं, ये d lambda by 2d, ये d lambda by d, 3 by 2 d lambda by d, तो इधर मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा ऐसे बनेंगे. तो मैक्सिमा पे इंटेंसिटी है 4a स्क्वायर या k इंटू 4a स्क्वायर, बिकॉज प्रोपोर्शनैलिटी होती है. तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर इधर मैक्सिमम है. तो मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं ऐसा बनेगा. सिमिलरली इधर नीचे भी ये बीटा बाई 2, ये 3 बीटा बाई 2, ये 5 बीटा बाई 2. This is beta, this is 2 beta. There is variation of intensity with distance from the center of screen. देखो इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ तो. सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो. आप डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन देखो कितना है. हमने लिया था जो डेरिवेशन की है, इन सारी पोजीशंस पे मैक्सिमा है और इधर मिनिमा है. बीटा बाई 2 3 बीटा बाई 2 5 बीटा बाई 2. तो सेंटर ऑफ स्क्रीन से ऊपर भी बीटा बाई 2 मिनिमा, नीचे भी बीटा बाई 2, और दो मिनिमास के बीच में बीटा बाई 2 और 3 बीटा बाई 2 के बीच में ये बीटा आ रहा है, तो वहां पे मैक्सिमा. तो
तो इसलिए स्क्रीन पे जो पैटर्न बनेगा वो मैक्सिमा मिनिमा बनेगा, कि पहले मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा। तो आपको इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वो आपसे बोल देंगे फाइंड डिस्टेंस बिटवीन थर्ड मिनिमा एंड फिफ्थ मैक्सिमा। तो थर्ड मिनिमा का डिस्टेंस कितना होगा? थर्ड मिनिमा का डिस्टेंस 5/2 d lambda by 2. 5/2 बीटा। और फिफ्थ मैक्सिमा का डिस्टेंस कितना होगा? 5 बीटा 5 बीटा। तो 5 बीटा माइनस 5 बीटा बाय 2 वो डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन फिफ्थ मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमा। दो मैक्सिमास के बीच में डिस्टेंस भी बीटा ही आएगा, बिकॉज ये बीटा पे मैक्सिमा है फिर 2 बीटा पे मैक्सिमा है, तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है दैट इज बीटा। सिमिलरली दो मिनिमास में भी डिस्टेंस बीटा ही है। तो इसका मतलब इंटरफेरेंस में फ्रिंजेस इक्वल विड्थ की बनते हैं, इनको हम बोल देते हैं दीज आर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। मैक्सिमा मिनिमा इस तरह से पैटर्न बन जाएगा स्क्रीन के ऊपर। बट अगर ये सारा का सारा apparatus उठा के मैं पानी में डाल दूं, तो पानी में फ्रिंज विड्थ सेम रहेगी या बदल जाएगी? बीटा की वैल्यू बदलेगी या सेम रहेगी? बदलेगी। कैपिटल डी नहीं बदला, स्मॉल डी नहीं बदला, पानी के अंदर लैम्डा वेवलेंथ ऑफ वेव बदलेगी या नहीं बदलेगी पानी में? लैम्डा घट जाएगा। कितना? पानी के अंदर कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? म्यू टाइम्स। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो 4/3। सो सारा का सारा अगर वाईडीएस apparatus हम पानी में डाल देते हैं तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी म्यू टाइम्स। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बिकॉज कैपिटल डी एंड स्मॉल डी विल नॉट चेंज, लैम्डा विल चेंज इनसाइड वाटर। सो पानी के अंदर लैम्डा की वैल्यू बदल जाएगी, एंड इसलिए हम लेंगे कि फ्रिंज विड्थ को हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमास और टू कंसेक्यूटिव मिनिमास। तो वो वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। इसमें देखो पहले यहां तक समझ में आ रहा है सारा जो लिखा है? ये तो मैथमेटिकल डेरिवेशन की थी। मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट ये समझ आया कि नहीं आया? ये जो मैक्सिमा मिनिमास की पोजीशन निकाली है, ये क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। बोर्ड सबको ब्लर्ड आ रहा है? मैंने अभी चैट में मैसेज पढ़े, सबको ब्लर्ड दिख रहा है अभी भी? यस नो। लेट मी सी अगर होता है कुछ इंप्रूव तो। अगर सबको ही ब्लर्ड दिख रहा है अभी भी सेम है या चेंज हुआ कुछ? सर सेम है। ब्लर्ड ही है अभी भी? यस सर। नहीं हुआ चेंज? चलो लिखो, एनीवेज नहीं हो रहा तो अब पता नहीं स्पीड का इशू होगा यहाँ तो। अगर सबको ब्लर्ड है तो मेरे एंड से स्पीड कम होगी फिर आज। एनीवेज ब्रॉडकास्ट से देख लो, अदरवाइज डेफिनेशन लिखो। फ्रिंज विड्थ सर Is एक the- बार इसकी पीडीएफ भेज देना, क्योंकि जो फ्रिंज वर्ड डायग्राम था वो बनाई थी पीडीएफ तब भेज ब्लड था। पीडीएफ भेज दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं। सेकेंड रेट
fringe width. It is the distance between two consecutive maximas or two consecutive minimas. It is the distance between two consecutive maximas or two consecutive minimas. Two consecutive minimas. Mathematically, fringe width is distance between n plus 1th maxima and nth maxima. N plus 1th maxima and nth maxima. That is beta is equals to n plus 1th maxima, मतलब n plus 1 d lambda by d minus n d lambda by d. So it's d lambda by d. Similarly for minima. मिनिमा के लिए n yn की वैल्यू क्या थी? और सिमिलरली n plus 1 है तो 2n plus 1 minus 1. एक बारी n की जगह n plus 1 पुट कर देना, एक बारी n पुट करना. It's d lambda by d. So maxima से निकालो या minima से, beta will be same. So you can write that is distance between two consecutive maximas and two consecutive minimas is same. Distance between two consecutive maximas and two consecutive minimas is same. इसके आगे लिखो नोट में, बिकॉज ये कंसेप्चुअल काफी पूछते हैं. नोट में लिख लो उसको. Fringe width depends on, yeah, fringe width is directly proportional to. Fringe width is directly proportional to fringe width is directly proportional to wavelength of the wave used. Wavelength of the wave used.
wavelength of the wave used. Therefore, if the YDS setup is immersed in a medium of refractive index mu, then wavelength decreases mu times, and the fringe width also decreases mu times. Wavelength decreases mu times and fringe width also decreases mu times. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से अगर मैंने एक स्लिट को कवर कर दिया तो क्या होगा? इंटरफेरेंस नहीं होगी. Fringe pattern will disappear and there will be uniform illumination of the screen. So you can write, if second point में लिख लो, if one of the slits is covered, then no interference or superposition will take place. And there will be general illumination of the screen. There will be general illumination of the screen. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हमने एक बार पहले भी लिखा था ना कोहेरेंट सोर्सेज में कि अगर क्या बोलते हैं पार्ट डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो भी जनरल इल्यूमिनेशन होता है. उसका क्या रीजन था? क्या पूछा आपने? अगर हमने कोहेरेंट सोर्सेज में लिखा था ना कि अगर पाथ डिफरेंस दो सोर्सेज में बहुत ज्यादा हो तो फिर जनरल इल्यूमिनेशन होता है. मतलब पाथ डिफरेंस को आप इसको ऐसे देखो ना कि अगर मैं डी और डी की रेशो को सेम ले लेता हूँ, कि अभी तक हमने इस assumption के साथ किया है कि कैपिटल डी इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू स्मॉल डी, बट अगर आप कैपिटल डी को कम करना शुरू कर दोगे तो फ्रिंज विड्थ कम होनी शुरू हो जाएगी, तो वो जो पैटर्न है वो नजर नहीं आता फिर, कि जो मैक्सिमम मिनिमम में डिफरेंस होगा कुछ, तभी आपकी आईज उसको देख सकती है ना. अगर कैपिटल डी और स्मॉल डी की रेशो मैं लूँ कि अगर ये ऑलमोस्ट 1 हो जाए या 2-3 भी हो जाए, तो ये आई कैन नॉट सी द पैटर्न जो बन रहा है, मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न, बिकॉज रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन है इतनी नहीं होती कि वो लैम्डा को रिजॉल्व कर सके. ओके सर. अगर S1 और S2 से जो लाइट है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की आ रही हैं, तो इसमें नहीं जनरल, मतलब यंग्स डबल स्लिट में तो लैम्डा सेम ही होता है, ए भी सेम ही होता है, बट अगर S1 और S2 से जो लाइट आ रही है विच ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, then no interference will take place, because interference की पहली condition थी that in superposition of two waves having same frequency and wavelength, तो lambda same होना चाहिए.
ठीक है, इसको भी लिख लो थर्ड पॉइंट को. If wavelength of the wave, if the wavelength of the wave from two sources S1 and S2 is different, then interference will not take place because for interference lambda should be same for both the waves. For interference lambda should be same for both the waves. अच्छा, अगर इंटेंसिटी ऑफ वेव डिफरेंट है, मतलब S1 और S2 से जो इंटेंसिटी, इस केस में हमने यंग्स डबल स्लिट में लिया कि वो सेम है, तो मैक्सिमा पे 4a², मिनिमा पे 0. बट अगर A1 A2 या I1 I2 इक्वल नहीं है तो क्या होगा? बिकॉज हमने जब डेफिनेशन लिखी थी ना, इफ यू रिमेम्बर, तो हमने लिखा था प्रेफरेबली सेम एम्पलीट्यूड. बट अगर वो एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो सर तो भी मतलब दिख जाएगा, मतलब एक जगह सर थोड़ा हाँ, राइट तो दिखेगा, एक तरफ उसको थोड़ा फिर लेफ्ट कैसे दिखेगा। लिखोगे? जिसे ब्राइट फ्रिंजेस विल बी लेस ब्राइट बिकॉज वहां पे 4a² नहीं आएगा फिर, एंड डार्क फ्रिंजेस विल बी लेस डार्क, तो वो कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा. मतलब जहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है, मैक्सिमा बन रहा है, वहां पे इंटेंसिटी कम हो जाएगी थोड़ी सी, और जहां पे यहाँ पे डार्क फ्रिंज पे इंटेंसिटी 0 है यंग्स डबल स्लिट में, तो अगर A1 A2 इक्वल नहीं होंगे तो वो डार्क फ्रिंज पे इंटेंसिटी 0 नहीं होगी. तो we say if amplitude of the two waves is different, then maximas या bright fringes will be less bright and dark fringes will be less dark. So इसको भी लिख लो, if amplitude of the two waves if the amplitude of two waves is different, then bright fringes will be less bright and dark fringes will be less dark. That is, bright fringes will be less bright and dark fringes will be less dark. That is, the contrast between maxima and minima will decrease. That is, the contrast between maxima and minima will decrease. You can write a numerical based on this. बोर्ड एग्जाम का दे रहा हूँ सबसे पहले. In YDS experiment, with monochromatic light, fringes are obtained on a screen at some distance capital D from the slits. At some distance capital D from the slits. If the screen is moved 5 centimeter towards the slits, if the screen is moved 5 centimeter towards the slits, the change in fringe width is
3 into 10 raised to power minus 5 meter. 3 into 10 raised to power minus 5 meter. If the distance between two slits is if the distance between two slits is 1 millimeter, find wavelength of wave used. Find wavelength of wave used. इजी न्यूमेरिकल है, करो। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? क्या दिया है? हमें दिया है कि अगर कैपिटल डी को हमने कम कर दिया, पहले अगर वो डी है उसको 5 सेंटीमीटर हमने कम किया, तो बीटा में जो चेंज आया दैट इज 3 into 10 raised to power minus 5 मीटर। तो हमने बताना है कि अगर स्मॉल डी गिवन है तो लैम्डा कितना है। करो इसको सॉल्व। सॉल्व करो एंड बताओ क्या। कम होगा। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला ही तो लगाना है। अगर मैंने डी को कम किया तो यू कैन से चेंज इन फ्रिंज विड्थ। इनिशियली ज्यादा है, फाइनल कम हो जाएगी। इनिशियली हमारे पास है डी लैम्डा बाय डी, इन फाइनल इट विल बी डी माइनस कितना दिया, 5 सेंटीमीटर है। This is given as 3 into 10 to the power minus 5 meter. Small d कितना दिया है? 10 to the power minus 3. Sorry, minus 2 and this should be minus 6. So 6000 angstrom. बोर्ड में 2 बार ही आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट टू राइट। ये क्लियर है ना सबको कैसे किया है? In YDS, small d is equal to 3 millimeter and capital D is 2 meter. सर एक बार स्मॉल डी की वैल्यू रिपीट कर दो 3 प्लीज। millimeter small d is 3 millimeter, capital D is 2 meter. The interference pattern can be seen on a screen
can be seen on a screen. One due to light of wavelength. One due to light of wavelength 480 nanometer. And other due to light of wavelength 600 nanometer. And other due to light of wavelength 600 nanometer. And other due to light of wavelength 600 nanometer. What is the separation on the screen? What is the separation on the screen between fifth bright fringe due to two interference pattern? What is the separation on screen between fifth bright fringes due to two patterns? तो दोनों के फिफ्थ फ्रिंज का डिस्टेंस निकाल लो, उनमें डिफरेंस निकाल दो. Fifth bright fringe will be formed at 5d lambda by d. क्या आ रहा है आंसर? 4 into 10 raised to power minus 4 meter. यस सर 4 यही into आ रहा 10 है. raised to power minus 4 meter. Because 5d lambda 1 by d minus 5d lambda 2 by d. डिफरेंस ही निकालना है बस. सर आंसर कितना है? 4 into 10 raised to power minus 4 meter. यस सर सही है. हो गया सबका? 4 into minus 10 is to minus 4 है. 4 into 10 raised to power minus 4. अब 2 या 3 भाई तो सेम ही क्वेश्चन आया. सेम ही क्वेश्चन मतलब उन्होंने सिर्फ डी लैम्डा और स्मॉल डी तीनों वैल्यूज दे दिए. तो उन्होंने कहा फ्रिंज विड्थ निकालो, फिर निकालो अगर पानी में इमर्स कर दिया तो पानी में इमर्स करके कितना चेंज आएगा. अगर पहले बीटा ही तो पानी में इमर्स करके इट विल बी 3/4 beta. 3/4 बीटा. 3/4 तो वो 2 beta. मार्क्स में आता है. 1 मार्क्स में फ्रिंज विड्थ निकालनी, 1 मार्क्स में पानी में फ्रिंज विड्थ निकालनी. तो वो 3-4 बारी सेम ही क्वेश्चन रिपीट किया, इसलिए वो नहीं मैं करा रहा. बिकॉज मैं तो सिंपल ही बिल्कुल कुछ भी नहीं है, डी लैम्डा और डी की वैल्यू पुट करनी है और पानी में इमर्स करेंगे तो उसको म्यू से डिवाइड कर देना. अच्छा, अगर दोनों जो स्लिट्स हैं इनकी विड्थ डिफरेंट हो, जैसे मैं बोलूं S1 की विड्थ S2 से डबल है, तो विड्थ डबल होने से क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी डबल हो जाएगी. अगर विड्थ डबल करेंगे तो इंटेंसिटी में क्या चेंज आएगा? 4 times हो जाएगी.
intensity is proportional to area of slit or not? Yes. तो अगर मैं बोलूं कि मैंने स्लिट विड्थ डबल कर दी, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपको खुद थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा. कई बार ये होगा कि सर्कुलर स्लिट है, मतलब सर्कुलर होल किया हुआ है. सर्कुलर होल किया है तो रेडियस को डबल करेंगे तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा. बट अगर रेक्टेंगुलर स्लिट है तो उसके अगर सिर्फ आपको कहा कि विड्थ को डबल किया, मतलब लेंथ को चेंज नहीं किया, तो फिर एरिया डबल होगा. एंड यू हैव टू यूज द कंसेप्ट दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो उस वे में सॉल्व करेंगे. कल करते हैं उस तरह के क्वेश्चन कुछ. एंड मिक्स एक मैंने एमसीक्यूज का टेस्ट डाला था 15 क्वेश्चन का, उसमें वाईडीएस के फॉर्मूले यूज होने थे, इसलिए मैंने 8:30 से ओपन किया था. अब से लेके कल तक कभी भी दे देना. बट उसमें वाईडीएस क्या है, 15 क्वेश्चंस हैं, 30 मिनट्स रखे हैं, बट टेंटेटिवली मेरे हिसाब से वो 15 मिनट में ही हो जाएगा टेस्ट. तो 15 से 20 मिनट ही लगेंगे, तो उस टेस्ट को एक करके देख लेना. कल करते हैं इसके आगे.